हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ मास 10 mg milligram and length 1 meter carries a current of 2 ampere. What minimum magnetic field B should be applied in the region so that the magnetic force on the wire may balance its weight? 1T, 4.9 into 10 to the power 5, 4.9 into 10 to the power minus 5, 9.8 into 10 to the power minus 5 Tesla. Question number 2. The magnetic field existing in a region is given by B, B, B 1 plus x by L k cap, B0 x by L k cap, a square loop of as L and carrying current I is placed with its edges parallel to the xy plane. The magnitude of net magnetic force experienced by the loop will be 0 Newton. 2I B0L, I B0L, 0.5 I B0L. Question number 3. An electron having kinetic energy 100 electron volt circulating in the path of radius 10 centimeter in the magnetic field, the number of revolutions per second made by the electron will be 100, 3.4 into 10 to the power 4, 3.4 into 10 to the power 6, 9.4 into 10 to the power 6. Question number 4. A proton is projected with a velocity 3 into 10 to the power 6 perpendicular to the uniform magnetic field 0.6 Tesla. The acceleration of the proton is 1.72 into 10 to the power 14, 1.72 into 10 to the power 16, 0, 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1. A straight horizontal wire of mass 10 milligram, length 1 meter, carries a current of 2 ampere. What minimum magnetic field B should be applied in the region so that the magnetic force on the wire may balance its weight? 1T, 4.9 into 10 to the power 5, 4.9 10 to the power minus 5, 9.8 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। एक रोड, इसकी लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर और इसका मास है 10 mg। M इज इक्वल टू 10 mg मिलीग्राम और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg। करंट I 2 एम्पियर। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। तो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन और फॉर मिनिमम magnetic field B should be perpendicular to the current I. तो F is equal to ILB और ILB is equal to F is equal to mg या B is equal to mg by IL। mg m है,
1 इंटू 10⁻⁻5 kg, और G की वैल्यू है 9.8, I करंट 2 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर। तो ये आ जाता है 4.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो जो B की वैल्यू होगी 4.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। C इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2. The magnetic field existing in a region is given by B01 plus x by L K. Z डायरेक्शन में है और x पर डिपेंडेंट है। A square loop of as L and carrying current I is placed with its edges parallel to the xy plane. The magnitude of the net magnetic force experienced by the loop will be 0 Newton, 2 IB0L, IB0L, 0.5 IB0L. Suppose this is XY plane, XY plane, this सपोज ये ओरिजिन पर ही है, यहाँ पर ये लूप रखा है, स्क्वायर लूप, P Q R S, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ L, S के कोऑर्डिनेट होंगे L0 और P के कोऑर्डिनेट 0 0। B की वैल्यू है B0 1 प्लस x बाई L के। तो एट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B0 1 प्लस, तो P पर x है 0 बाई L के कैप, ये हो जाता है B0 के कैप। और BS पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B0 1 प्लस x बाई L के कैप, और B0 यहाँ पर x की वैल्यू है L के कैप। तो ये आ जाता है L से L क्रॉस हो जाएगा 1 2 B0 के कैप। इस लाइन के अलोंग BP और इस लाइन के अलोंग BS, इसका अगर परपेंडिकुलर अपवर्ड 2B0 के कैप, और दिस इज B0 के कैप। और जो QR है इस पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, जिसका Q पर मैग्नीट्यूड होगा B0 और R पर जो लीनियरली इंक्रीज होते हुए R पर ये 2B0 हो जाएगा। सिमिलरली जो P पर मैग्नेटिक, जो अगर हम PS को देखें तो जो P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड B0
और एस पर जो होगा वो 2b0, और ये लीनियरली चेंज होंगे। सपोज हम एवरेज ले लें b0 और b0 का, इस पर जो एक्ट करेगा एवरेज 3b0/2 के कैप, और सिमिलरली पीएस पर भी 3b0/2 के कैप। अब फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन PQ, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन PQ FPQ ये होगा L, I करंट फ्लो कर रहा है और दिस इज इन Y डायरेक्शन, I J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड B0 के कैप। तो इस पर जो फोर्स लगेगा I B0 L I कैप इंटू K कैप, J कैप इंटू K कैप इज I कैप। तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इस डायरेक्शन में FPQ। अगर इसके सामने की साइड पर देखें FRS, वो होगा L I इन -J डायरेक्शन इंटू 2b0 के कैप, ये आ जाता है 2I B0 L माइनस में माइनस I कैप, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। अब FQR, FQR FQR होगा L इंटू I इन I डायरेक्शन क्रॉस 3b0 के कैप। ये आ जाएगा 3/2 IB0 L और I क्रॉस K इज -J डायरेक्शन। ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड। और सिमिलरली अगर हम देखें FPS, वो होगा L इंटू माइनस I कैप क्रॉस 3b0/2 के कैप, ये आ जाता है 3L
आई बी ज़ीरो बाई टू जे कैप, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब जो नेट फोर्स होगी एफ पी एस एंड एफ क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्रॉस कर जाएंगी दोनों एक दूसरे को, और एफ आर एस एफ, तो नेट फोर्स होगी एफ फोर्स पी क्यू प्लस फोर्स आर एस। पी क्यू है आई बी एल आई ज़ीरो, आई बी ज़ीरो एल आई कैप, और ये है माइनस टू बी ज़ीरो एल आई बी ज़ीरो एल आई कैप। तो नेट हो गया आई बी ज़ीरो एल आई कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है आई बी ज़ीरो एल। तो जो नेट फोर्स लगेगी वो होगा आई बी ज़ीरो एल। सी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. An electron having kinetic energy 100 electron volt circulating in a path of radius 10 centimeter in the magnetic field, the number of revolution per second made by electron will be 100, 3.4 into 10 to the power 4, 3.4 into 10 to the power 6, 9.4 into 10 to the power 6। जो काइनेटिक एनर्जी है के 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल, और रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ई चार्ज इंटू स्पीड इंटू बी। वी से वी क्रॉस हो गया, एक क्रॉस वी हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू v इज इक्वल टू ई बी आर बाई एम, और t की वैल्यू होगी t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी और 2 पाई आर बाई ई बी आर बाई एम। आर से आर कोर्स हो गया 2 पाई एम बाई ई बी टी। बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू q e EVB और V से भी क्रॉस हो गया, mv बाई आर इज इक्वल टू EB और mv इज P पोटेंशियल, P बाई आर इज इक्वल टू EB और पोटेंशियल की वैल्यू होती है 2m के अंडर रूट बाय आर इज इक्वल टू EB। EB की वैल्यू हमने T इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई EB, EB इज 2m k अंडर रूट बाय r और 2 पाई एम आर बाई 2m k अंडर रूट t। फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन पर सेकेंड n इज इक्वल टू 1 बाई टी और रूट 2 m k बाई 2 पाई एम आर और 1 अपॉन पाई आर कॉमन ले लिया हमने, k बाई 2m अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी k 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 2 इंटू mass of an electron 9.1 into 10 to the power minus 31 अंडर रूट 1 अपॉन पाई और r है, r इज 0.1, 0.1 इसको हम कैलकुलेट कर लें, 1 अपॉन पाई इंटू 0.1 1.6 divided by 2 into 9.8 into 10 to the power minus plus 14 अंडर रूट। वन अपॉन पाई इंटू 0.1 1.6 अपॉन 2 इंटू 9.1 अंडर रूट इंटू 10 टू द पावर 7। टेन बाई पाई डेसिमल से डेसिमल क्रॉस हो गया, 28 8 बाई 91 अंडर रूट इंटू 10 टू द पावर 7, 8 बाई 98 91 0 0 0 अप्रोक्सीमेट 9 और 0.09 का अंडर रूट 0.3,
ये आ जाए 10/पाई इंटू 0.09 10⁻⁷ और 10 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁷ by 3.14 3 by 3.14 10⁻⁷ 0.94 इंटू 10⁻⁷ और 9.4 इंटू 10⁻⁶। जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9.4 इंटू 10⁻⁶। डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 4. A proton is projected with a velocity 3 into 10⁶ perpendicular to a uniform magnetic field 0.6 t. The acceleration of proton is 1.72 into 10⁻⁴ meter per second square, 1.72 into 10⁻⁻16, 3 into 10⁻⁶ meter per second square. The charge on proton is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो फोर्स है v की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड और b है 0.6। तो फोर्स F इज इक्वल टू QVB 1.6 into 10⁻⁻19 into 3 into 10⁻⁶ into 0.6। ये फोर्स हो जाता है 1.6 into 1.8 into 10⁻⁻13 न्यूटन और 2.88 into 10⁻⁻13 Newton F. Acceleration of proton A is equal to F by m. F at 2.88 into 10⁻⁻13 Newton और m है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ये आ जाता है 288 by 167 into 10⁻⁴ और 288 divided by 167 121 0 779 1 4 0 2 1.72 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन होगा प्रोटॉन का 1.72 into 10⁻⁴ A इज करेक्ट ऑप्शन।